Hello aspirants, welcome to Exam Sastra. Today we will discuss about current affairs of 22nd September. So let's start the session. The first topic is about India's digital landscape with PM Wani, which is important from paper to governance point of view. तो PM Wani जिटु इनिशिएटिव हे इनिशिएटिव टुर বিষয়ে আমি জানিম তো কনটেক্সট এটু হয় যেটু ইন্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ পৰা সবে নিউজটো উঠোৱা গৈছে ঠিক আছে The Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface PM Wani মানে গল Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface. It is a scheme that is set to revolutionize public Wi-Fi in India. ঠিক আছে যদি পাবলিক ওয়াইফাই প্ৰদানৰ কাৰণে এই স্কিমটো আসলে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লৈ আহিছিলে PM Wani can be potential game changer for India's digital public infrastructure. Indiaৰ public infrastructure basically যি digital public infrastructure আছে তাৰ কাৰণে game changer হিচাপেও এটোৱে কাম কৰিব পাৰে বুলি আসলে আশা কৰা হৈছে The scheme enables public Wi-Fi data service through email retail data offices which can potentially bring broadband internet to remote locations at minimum investment. एक minimum investment में जो basically remote locations है दुनिया like India भर में वहाँ तक internet की broadband सुविधा पहुंचाने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया था. So what is PM Wani? PM Wani that was launched by Department of Telecommunication in December 2020 में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लॉन्च किया गया था which is one key scheme launched to boost the penetration of public Wi-Fi hotspots to establish a robust digital communication infrastructure throughout the nation especially in rural areas जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है बेसिकली रूरल एरियाज में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है उसको बूस्ट करने के लिए एक रोबस्ट लाइक डेवलपमेंट के लिए बेसिकली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ये स्टेप 2020 में लाया गया था ठीक है PM Wani इकोसिस्टम के बारे में देखते हैं बेसिकली PM Wani में क्या-क्या एलिमेंट्स है देयर आर 4 एलिमेंट्स ठीक है पहला जो है PM Wani के अंदर पब्लिक डाटा ऑफिस जिसको बोला जाता है PDO एक एलिमेंट है PDO बेसिकली क्या है देखिए PDO is the entity that establishes, maintains and operates Wi-Fi hotspot by procuring internet bandwidth from telecom service providers or internet service providers. Basically কি কৰে PDO এ যি Wi-Fi hotspot service আছে হেতু অপাৰেট মেইনটেইন এস্টাবলিশ কৰাৰ লৈকে গুটেখিনি কাম কৰে যাৰ জৰিয়তে ইন্টাৰনেট bandwidth যেটো আছে ঠিক আছে টেলিকম প্ৰভাইডাৰৰ পৰা ৰিমোট লোকেশন লৈকে লৈ যোৱা কাম কৰে Number 2 is Public Data Office Aggregator PDOA Public Data Office PDO and PDOA ठीक है aggregator so PDOA basically जो एक like it is an entity ठीक है जो aggregation services provide करते हैं कैसा aggregation service such as authorization and accounting to PDOs and facilitates them in providing service to the end users बेसिकली एग्रीगेटर सर्विस कौन सा होता है जो हाँ इसको हम लोग लाइक मिडिलमैन का जो सर्विस होता है ना उसी तरीके का होता है फॉर एग्जांपल ओला उबेर ठीक है जो दोनों लाइक दो फेस को एक होता है प्रोवाइडर एक होता है यूजर ठीक है दोनों को कनेक्ट कराते हैं तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी को इसको कनेक्ट कराने के लिए सुविधा प्रोवाइड करने के लिए जो एग्रीगेटर का काम जो करेगा जो एंटिटी करते हैं उसको बोला जाता है पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर तीसरा है ऐप प्रोवाइडर देखिए यहाँ पे क्या होता है ये जो एंटिटी है ना जो ऐप प्रोवाइड करते हैं एक्चुअली दे डेवलप्स एन एप्लीकेशन टू रजिस्टर्ड यूजर्स ठीक है यूजर्स को रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है एक एप्लीकेशन बनाया जाता है ठीक है एंड डिस्कवर एंड डिस्प्ले PM Wani compliant Wi-Fi hotspot and also authenticate the potential users आसपास में कहां पे PM Wani Wi-Fi hotspot है उसको डिटेक्ट करने के लिए ठीक है डिस्कवर एंड डिस्प्ले करने के लिए ये ऐप काम करता है और ऐप बनाते कौन है ये जो ऐप प्रोवाइडर है ठीक है बेसिकली ये जो एंटिटी है चौथा क्या है सेंट्रल रजिस्ट्री क्या है इट इज द एंटिटी दैट मेंटेन्स द डिटेल्स ऑफ ऐप प्रोवाइडर्स कौन ये जो ऐप प्रोवाइड जो कर रहा है ठीक है उसके रिगार्डिंग डिटेल्स जो पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स है उससे रिलेटेड डिटेल्स जो पब्लिक डाटा ऑफिस है उससे जो भी ऑफिसेस रहेंगे उससे रिलेटेड डिटेल्स जो होगा वो
उससे लाइक कौन मेंटेन करेगा पूरा रिकॉर्ड्स, ये सेंट्रल रजिस्ट्री मेंटेन करेंगे, ठीक है। इट इज करेंटली मेंटेन बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसको बोला जाता है सीडॉक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जो है सीडॉक, यही करेंटली सेंट्रल रजिस्ट्री की तरह काम कर रहा है इंडिया में, ठीक है। सो एक जो होता है कि पीएम वानी अगर आ जाएंगे तो बेनिफिट क्या होगा, देखिए बेनिफिट क्या होगा कि रिमोट एरियाज तक इसको लेके जा सकते हैं, इंटरनेट की सुविधा दिला सकते हैं, ठीक है। इट कैन प्रोवाइड एन अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट ऑप्शंस फॉर इंटरनेट एक्सेस एज कंपेयर टू मोबाइल टेक्नोलॉजीज लाइक 5G which require high investment and subscription cost, ठीक है। 5G के लिए ज़्यादा जो भी प्रोवाइडर 5G प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए पैसा बहुत खर्च होता है, हाई इन्वेस्टमेंट होता है, और जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है ये भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए ठीक है, लाइक इंडिया के कोने कोने तक इसको ले जाने के लिए, रिमोट एरिया तक पहुंचने के लिए ये स्कीम लाया गया है, ये काम करेंगे। क्योंकि आज के डेट में बेसिकली कोविड-19 के बाद ये जो डिजिटल कनेक्टिविटी है ये सबसे इंपॉर्टेंट बन गया है, लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे हैं, साथ साथ में आज अगर पेमेंट के मामले में अगर बात किया जाए तो लोग आजकल ज़्यादा डिजिटल पेमेंट मतलब देना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अगर रिमोट एरियाज में अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कम्युनिकेशन होगा तो या फिर इंटरनेट की सुविधा रहेंगे तो बेसिकली उसको भी जो डिजिटल पेमेंट है, जो डिजिटलाइजेशन का सपना इस लाइक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा था वो पूरा भी हो सकता है, ठीक है। साथ साथ में इट कैन स्टिमुलेट इनोवेशन एंड कंपटीशन इन द इंटरनेट मार्केट, ज्यादा कंपटीशन इंटरनेट मार्केट में ज्यादा प्लेयर्स आएंगे, कंपटीशन भी बढ़ाएगा, ठीक है, इनोवेशंस भी लाएंगे, ऐसा आशा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है चैलेंजेस क्या क्या है, देखिए चैलेंजेस क्या क्या है। Ensuring Wi-Fi quality and user experience poses challenges related to bandwidth availability, managing user numbers, device compatibility and maintaining data security and privacy. सबसे important जो है ये है data security and privacy, इससे related threat आ सकता है। Second जो है security threats like data leakage, hacking and malware can be jeopardize users and provider privacy. Same जो है privacy को लेके यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, डाटा लीकेज हो सकता है वाईफाई के थ्रू, ठीक है, हैकिंग वगैरह हो सकता है। तीसरा जो है मोबाइल टेलीकॉम कंपनी जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, जो बीड करेंगे इसके लिए, दे माइट फेस सम चैलेंजेस इंक्लूडिंग मार्केट शेयर, ठीक है, एंड रेवेन्यू लॉस। क्योंकि देखिए अगर रिमोट एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे तो ये भी तो है ना कि यहाँ पे जो प्रोवाइडर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है या फिर होगा, लेकिन इसका जो रिटर्न है, ठीक है, ये कम होगा या फिर कम हो सकता है क्योंकि सबका रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं होता है। ये मैंने जो चौथा पॉइंट है वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है। एक्सपांडिंग एंड मेंटेनिंग PM1 इन रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज विद लो इंटरनेट डिमांड एंड हाई ऑपरेशनल कॉस्ट कुड बी चैलेंजिंग। यहाँ पे हाई ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा बन जाता है, लेकिन इतना ज्यादा अभी तक के लिए इतना ज़्यादा तो इंटरनेट के लिए डिमांड है ही नहीं। बहुत लोगों को मोबाइल फ़ोन जो सिंपल हैंडसेट है उसको भी यूज़ करना नहीं आता है, तो वहाँ पे अगर कोई प्रोवाइडर PM1 के थ्रू ये इन्वेस्ट भी करेंगे तो रिटर्न कितना आएगा, ये भी इन्वेस्टमेंट की पर्सपेक्टिव से एक ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो ये था पहला टॉपिक, ठीक है, PM1 से रिलेटेड। सेकेंड जो टॉपिक मैंने लिया है इट इज अबाउट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, GS पेपर 2 से, ये मैंने डाउन टू अर्थ से लिया है। रिसेंटली एक स्टडी किया गया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो 78 सेशन था वहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। टाइटल जो था इट इज ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन, ये याद रखिएगा, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन, द रेस अगेंस्ट ए साइलेंट किलर, ठीक है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन, द रेस अगेंस्ट ए साइलेंट किलर। क्यों साइलेंट किलर बोला जाता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इट इज द फर्स्ट एवर रिपोर्ट, देखिए ये पहला ऐसा रिपोर्ट है WHO के द्वारा जिसको रिलीज किया जा रहा है ऑन द वर्ल्डवाइड इम्प्लीकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन, कॉमनली रेफर्ड टू एज हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाई ब्लड प्रेशर भी बोला जाता है, और इससे रिलेटेड ये पहला रिपोर्ट है जिसको WHO ने पब्लिश किया है। यहाँ पे मैंने जो फोटो दिया है वहाँ पे लिखा ही है कि every 1 in 3 adults has hypertension but only half know it, मतलब लोगों को मालूम ही नहीं है, 3 में से 1 को हाइपरटेंशन है और लोगों को मालूम ही नहीं है।
50% लोगों को मालूम नहीं कि मेरा हाइपरटेंशन है। ठीक है, ये बेसिकली अगर बोला जाए ये कोविड 19 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसको अगर ध्यान देंगे आप लोग तो कोविड 19 के बाद ये जो हाइपरटेंशन का इशू है बहुत ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, सो व्हाट आर द की हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट, ये भी देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे बोला गया है। पहला जो है ये ग्लोबल पैंडेमिक, ठीक है, ठीक है, ग्लोबल पैंडेमिक क्यों है? 1 in 3 एडल्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड सफर्स फ्रॉम हाइपरटेंशन। दूसरा क्या है? द नंबर ऑफ हाइपरटेंशन केसेस हैज डबल फ्रॉम 650 बिलियन टू ए स्टेगरिंग 1.3 बिलियन बिटवीन 1990 एंड 2019। ओके, तो ये ध्यान देने वाली बात है। 650 मिलियन जो है, ठीक है, 650 मिलियन एक टाइम में हुआ करता था 1990 में, लेकिन 2019 आने तक, ठीक है, ये पहुंच गया 1.3 बिलियन तक। देखिए ऑलमोस्ट इंडिया का पॉपुलेशन जैसा, जितना बड़ा पॉपुलेशन है उतनी ही पॉपुलेशन वर्ल्ड भर में, दुनिया भर में ये फेस कर रहा है। हाइपरटेंशन अफेक्ट्स approximately 33% ऑफ एडल्ट्स एजेड बिटवीन 30 to 79 वर्ल्ड वाइड। 30 साल से ऊपर में जो भी लोग हैं अप टू 79, जितने भी एडल्ट्स हैं उनमें से 33% लोगों को ये प्रॉब्लम है। एक सीवियर प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको ग्लोबल एपिडेमिक भी बोला गया है। Approximately 4 out of every 5 people with hypertension are not adequately treated। जितने लोगों को हाइपरटेंशन है, मान लीजिए 5 लोग हैं, उनमें से 4 लोगों को एडिक्वेटली ट्रीट ही नहीं किया गया है, फिर कोई सुविधा नहीं मिलता है। सेकेंड जो है इंडियाज हाइपरटेंशन बर्डन। इंडिया के केस में क्या है, देखिए, इंडिया अलोन हैज एन एस्टिमेटेड ऑफ 188 मिलियन एडल्ट्स, 188 मिलियन, ठीक है। तो देखिए 18 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को ये हाइपरटेंशन इंडिया में है। एज ग्रुप क्या है, वही 30 to 79 ही है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ग्रैपलिंग विद हाइपरटेंशन, द प्रिवेलेंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन इंडिया इज स्लाइटली लोअर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 31%, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए ग्लोबल एवरेज कितना है, 31%, इससे थोड़ा कम इंडिया में है। To reach a 50% control rate, India needs to ensure that an additional 67 million people with hypertension receive effective treatment. If the progress scenario were achieved, 4.6 million deaths due to high blood pressure would be averted by 2040। अगर ऐसा हो गया, ठीक है, जो प्रोग्रेसिव सिनेरियो है उसको अगर हम लोगों ने अचीव कर पाया इन द नियर फ्यूचर, तो 4.6 मिलियन डेथ्स ये कम हो सकता है बाय 2040। तीसरा क्या बोला गया है, inadequate treatment, about 80% of the individuals with hypertension they do not receive adequate treatment, ठीक है। देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है, सो इसीलिए बोला गया है साइलेंट किलर। Effective hypertension treatment has the potential to prevent 76 million deaths, 120 million strokes, 79 million heart attacks and 17 million केसेस ऑफ हार्ट फेलियर। अगर मान लो किसी को इफेक्टिव हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट मिल जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि इससे 76 मिलियन डेथ्स हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। 120 मिलियन से ज्यादा स्ट्रोक्स को रोक सकते हैं, 79 मिलियन से ज्यादा हार्ट अटैक को रोक सकते हैं, 17 मिलियन हार्ट फेलियर के केस को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट बन गया और मैंने इसलिए ये जो हाइपरटेंशन के ऊपर रिपोर्ट आया है इसको मैंने आज उठाया है, ठीक है। चौथा जो है डिस्पैरिटीज इन ट्रीटमेंट कवरेज। तो ये क्या होता है कि डिस्पैरिटीज कैसे है ट्रीटमेंट कवरेज में। हाई इनकम नेशंस को ज्यादा सुविधा है, ठीक है, कवरेज रेट मिल जाता है, एंड इन लोगों का कवरेज रेट ज्यादा है। एंड मोर देन 3/4 ऑफ एडल्ट्स विद हाइपरटेंशन लिव्स इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो इससे ये भी दर्शाता है कि हाँ, एक इकोनॉमिक और जो फाइनेंशियल जो बर्डन है या फिर फाइनेंशियल जो इशू है, ये भी हाइपरटेंशन के लिए एक मेन रीजन बन गया है, ठीक है, ओके। और दूसरा जो है बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो भी केसेस हो रहा है दुनिया भर में, इसको प्रिवेंट किया जा रहा है बेसिकली बाय द हायर इनकम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नंबर 5, द अर्जेंसी ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट।
Nearly 30% of individuals with uncontrolled hypertension exhibit blood pressure measurement above the threshold warranting urgent treatment. And globally, the percentage of adult aged 30 to 70 taking medication for hypertension has doubled from 22% in 1990 to 42% in 2019. जितने भी 30 से 70 एज ग्रुप में जो भी लोग हैं जो हाइपरटेंशन के लिए मेडिकेशन कर रहा है, इसका संख्या भी बढ़ गया है फ्रॉम 22% इन 1990 अप टू 42% इन 2019. मतलब 30 साल में 22% से 42% हो गए जो अंडर मेडिकेशन है. ठीक है, तो रिकमेंडेशन क्या है, कैसे ठीक होगा? देयर इज ए नीड ऑफ स्ट्रेंथ एंड हाइपरटेंशन कंट्रोल प्रोग्राम्स. यहाँ पे क्या होना चाहिए, हर देश में हाइपरटेंशन कंट्रोल प्रोग्राम्स को चलाना चाहिए. दैट रिमेन्स अंडर प्रायोरिटाइज एंड एक्यूटली अंडर फंडेड. यहाँ पे एक बात और आता है कि इसके लिए फंड रिलीज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को. साथ साथ में स्ट्रेंथनिंग हाइपरटेंशन कंट्रोल मस्ट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी कंट्रीज जर्नी टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए जो भी कंट्री अपने हिसाब से काम कर रहा है, यहाँ पे हाइपरटेंशन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा या फिर इंटीग्रल पार्ट बनाना पड़ेगा. इसके साथ साथ में अवेयरनेस बहुत बड़ी इशू है. ठीक है, बाय हेल्थ मिनिस्ट्री और हेल्थ डिपार्टमेंट से ये अवेयरनेस अगर लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है, थ्रू डिफरेंट कैंपेन्स. ठीक है, डिफरेंट ये कैंपेन्स एड कैंपेन्स भी हो सकता है. ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई जिसको जो स्ट्रीट ड्रामा वगैरह भी अगर करेंगे, বাতৰ নাচ যাক কোৱা হয়, হেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কৰিব পাৰোঁ. বা ইয়াত কোনোবাই হয়তো কোনোবা লাইক চেলিব্ৰিটি যদি ইয়াৰ ৰিলেটেড প্ৰচাৰ কৰে, যেনেকৈ টিভি ৰিলেটেড অমিতাভ বচ্চনে প্ৰচাৰ কৰিছে, থ্ৰু ডিফাৰেণ্ট মিনছ এৱাৰনেছ কৰিব পৰা যায়. ঠিক আছে, এৱাৰনেছ কৰিলেও এৱাৰনেছৰ মানে প্ৰগ্ৰেম যদি কৰে হেল্থ মিনিষ্ট্ৰী বা হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টছবোৰৰ জৰিয়তে এট দ্য চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট লেভেল, তো এই ক্ষেত্ৰতো মানুহ সজাগতা বৃদ্ধি পাব. তাৰ লগতে হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব. ঠিক আছে, অ'কে. আৰু ৰিম'ট এৰিয়াজত হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব. এণ্ড চবতছে ডাঙৰ কথাটো হৈ গ'ল কি ইয়াৰ ৰিলেটেড যদি কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত কাউন্সিলিঙৰ দৰে ব্যৱস্থা কৰে, তেতিয়াহ'লে ইন ফিউচাৰ এই হাইপাৰটেনশ্যনৰ যিটো ইছ্যু এইটো আমি বহুত পৰিমাণে কমাবলৈ সক্ষম হ'ম. ঠিক আছে. The next topic is about State of Working India 2023. बेसिकली एक रिपोर्ट पब्लिश किया है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, ओके, जिसको बोला गया है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023, जहां पे इंडियन वर्कफोर्स के बारे में कुछ हाईलाइट किया गया है. ठीक है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट से लेके वुमेन पार्टिसिपेशन से लेके कास्ट बेस्ड वर्कफोर्स डायनामिक्स के बारे में भी यहाँ पे बात किया गया है. The report used various data sources like surveys conducted by NSO, National Statistical Office, including unemployment surveys and periodic labor force surveys along with the India Working Survey. इन अलग अलग सर्विस से ये डाटा इन लोगों ने लिया है, लेके ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश किया गया है. ठीक है, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में असल में है क्या. पहला जो है फर्स्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस, ओके, 1980 से लेके 2004 तक ऐसा बोला गया है कि जो रेगुलर वेज और सैलराइड वर्कर्स है इनका संख्या बढ़ा है फ्रॉम 18% टू 25% फॉर मेन एंड 10% टू 25% फॉर वीमेन. मेल के लिए 18% इन 1980, ठीक है, अप टू 25% इन 2004 एंड 10 to 25% फॉर वीमेन फ्रॉम 1980 to 2004, जो एक अच्छी बात है. ठीक है, सिंस 2019 ये भी बोला गया है कि जो रेगुलर वेज जॉब्स है, जो जॉब क्रिएशन है, ये भी घट रहा है. ठीक है, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ स्लो डाउन एंड द पेंडेमिक. पेंडेमिक के लिए
बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को ले ऑफ किया गया है बाय डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पे ले ऑफ किया जा रहा है मास लेवल पे, तो इसीलिए ये वाला जो रिपोर्ट है यहाँ पे भी ये देखने को मिला है। दूसरा जो है इट इज अबाउट जेंडर बेस्ड अर्निंग डिस्पैरिटी। देखिए जेंडर बेस्ड अर्निंग डिस्पैरिटी में बोला गया है अगर कोई मेल 100 रुपए कमा रहा है या फिर 2004 में 100 रुपए कमा रहा था तो फीमेल को कितना मिलता था 70 रुपीज, बट 2017 में ये गैप रिड्यूस होकर 70 से 76 हो गया है एंड अप टू 2017 टू 2021-22 तक ये 5 साल का जो गैप है यहाँ पे ये स्टेटिक दिखने को मिला है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, अभी भी 76 ही है। मान लीजिए मेल को 100 रुपए मिल रहा है तो फीमेल को कितना मिल रहा है 76 रुपीज, ठीक है। तो जेंडर बेस्ड अर्निंग डिस्पैरिटीज भी रिड्यूस हुआ है, बट हाँ अभी भी डिस्पैरिटी है। तीसरा जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड एजुकेशन। देखिए सीधी तरीके से अगर बोला जाए 2017-18 से अगर 2021-22 तक अगर बात करें ऑलमोस्ट 4-5 साल में 8.7 से 6.6% तक ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है। और ऐसा बोला गया है कि ग्रेजुएट्स के अंदर, ठीक है, जो 25 के नीचे वाले जो लोग हैं जो ग्रेजुएट है उनमें सबसे ज्यादा हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखने को मिला है, ठीक है, 42.3%, 2.3%. In contrast, those who have cleared the higher secondary education, they had a lower unemployment rate of 21.4%. ठीक है, बेसिकली देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायर सेकेंडरी लेवल पे वैसे भी कम दिखने को मिलता है क्योंकि जॉब सर्चिंग जब एक आदमी करते हैं, ठीक है, जो जॉब करने के लिए उनके पास स्किल भी है एंड जो अवेलेबल वेज रेट है जो मार्केट में चल रहा है वहां पे काम करने के लिए भी वो रेडी है, तब भी बोला जाता है अनएम्प्लॉयड। लेकिन हायर सेकेंडरी के बाद ही लोग जॉब सर्च तो नहीं करते इतना ज्यादा, इसीलिए ये मात्रा जो है, ये जो परसेंटेज है ये कम देखने को मिलता है। उसके बाद जो आता है कास्ट वाइज वर्कफोर्स डायनेमिक्स, मतलब कास्ट वाइज कितने लोग कौन से सेक्टर में है। बेसिकली यहाँ पे कैजुअल वेज वर्क, ठीक है, एंड कैजुअल जो परमानेंट जो रेगुलर वेज है इसको ही कंपेयर किया जा रहा है और कंपैरिजन एससी एंड जनरल कैटेगरी में बीच में किया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि 2021 में और ये भी बात बोला गया है कि दोनों के बीच में जो डिस्पैरिटी जो था एससी एंड जनरल ये भी कम हुआ है। बाय 2021 40% ऑफ एससी वर्कर्स वर इन्वॉल्व इन कैजुअल एम्प्लॉयमेंट एज कंपेयर टू 13% ऑफ जनरल कास्ट वर्कर्स। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में करीबन 40% लोग 2021 में था एससी में से, ठीक है, लेकिन जनरल की बात किया जाए तो इट was about 13%. Furthermore, around 22% of SC workers were regular wage workers, ठीक है, as opposed to 32% of general caste workers. ये यहां से मालूम हुआ कि ये जो डिस्पैरिटी है ये भी कम हुआ है और टाइम टू टाइम ये कम होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए जब हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, ठीक है, सरल से हम लोग बोलते हैं कि जीडीपी का ग्रोथ हुआ है तो इकोनॉमिक ग्रोथ आया है। डेवलपमेंट एक अलग किस्सा है, अलग चीज है, लेकिन ग्रोथ अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होने से एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी होगा और यहाँ पे यही बोला गया है, ठीक है। और साथ में बोला गया है कि ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर सेक्टर्स हैज नॉट एंश्योर्ड ए शिफ्ट टू सैलराइड एम्प्लॉयमेंट। ओके, ये दो बात यहाँ पे किया गया है। That was about State of Working India 2023 report. Okay. Next topic is about World Rhino Day. पहले ये जानेंगे कि वर्ल्ड राइनो डे क्या है, 2003 में क्या इनिशिएटिव लिया गया है, बेसिकली क्या है। ओके, तो वर्ल्ड राइनो डे 2023 सर्व्ड एज ए poignant reminder of the urgent need of protect these magnificent creatures that roam the forested landscape of our planet. World Rhino Day is observed every year on 22nd of September and celebrates all 5 species of rhino. ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डाला है, मतलब राइनो के अलग अलग जो 5 स्पेसीज है इसको कंजर्व करने के लिए, ठीक है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए ही 22 सितंबर को ये वर्ल्ड राइनो डे को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार के लिए किसने मनाया था, तो जो WWF है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड
साउथ अफ्रीका का जो ब्रांच है, इन लोगों ने 2010 में ये पहली बार के लिए वर्ल्ड राइनो डे मनाया था। 2023 की अगर थीम की बात करें तो अभी तक कोई एक्सप्लिसिटली डिफाइंड थीम नहीं है, जिसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, लेकिन आप लोग एक बार 22 वाला जो थीम है उसको भी देख के रखिए फॉर एग्जाम्स, ठीक है, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। वर्ल्ड राइनो डे पर्पस जो है ये भी देख लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि वर्ल्ड राइनो डे सभी लोगों को इसीलिए वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है ताकि जो राइनोसरस है इनका कंजर्वेशन किया जा सके, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी इनोवेशन सॉल्यूशंस है और कंजर्वेशन के लिए अलग अलग कोलैबोरेशंस विद द गवर्नमेंट्स, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन जो भी वाइल्ड लाइफ के लिए काम करता है एंड लोकल कम्युनिटीज के बीच में ये कोलैबोरेशन कराने के लिए ये पर्टिकुलर डे को मनाया जाता है। देखिए, इनोवेटिव सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, जो जीपीएस, ठीक है, जीपीएस के थ्रू टैगिंग जो किया रहा है, जीपीएस टैगिंग जो किया जा रहा है काजीरंगा में, ये भी एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है, जिससे क्या हुआ है, अभी जो पोचिंग है वो कम होता दिख रहा है हम लोगों को। इस साल एक पोचिंग हुआ है जो बहुत गलत बात है, लेकिन पहले से इसका मात्रा भी कम हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो पहले उसके बाद ये देख लेते हैं कि राइनोसरस जो 5 स्पेसीज के बारे में मैंने बोला था, उस 5 स्पेसीज के बारे में अभी हम लोगों को जानना है। पहला जो है इट इज व्हाइट, दूसरा है ब्लैक राइनोस, दोनों अफ्रीका में पाया जाता है। साथ साथ में इंडियन वन हॉर्न राइनोसरस जिसको ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसरस भी बोला जाता है। उसके बाद जावान एंड सुमात्रन राइनो स्पेसीज जो एशिया में मिलता है। सभी राइनो स्पेसीज की आईयूसीएन रेड डाटा लिस्ट में अगर स्टेटस की बात किया जाए तो यहां पे दिखने को मिलेगा कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड 3 स्पेसीज है। कौन कौन सा है, यहां पे है ब्लैक, यहां पे है जावान एंड सुमात्रा, BJS, ये 3 जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इन द आईयूसीएन रेड डाटा लिस्ट। एंड व्हाइट राइनो जो है नियर थ्रेटेड है क्योंकि इसका काफी मात्रा में इसका पॉपुलेशन अभी भी दुनिया भर में पाया जाता है। और जो हमारे वाला इंडियन वन हॉर्न राइनोसरस है, इट्स स्टेटस इज वल्नरेबल, ये याद रखना है, ठीक है। अबाउट वन हॉर्न राइनोसरस कहां पे पाया जाता है, सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है। ये सब 5 में से ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होता है, ओके। और इट इज आइडेंटिफाइड बाय सिंगल ब्लैक हॉर्न एंड ए ग्रे ब्राउन हाइड विथ स्किन फोल्ड्स, ऐसे होता है ना कुछ, ठीक है, ओके। एंड दे primarily graze with a diet consisting almost entirely of grasses as well as leaves, branches of shrubs and trees, fruits and aquatic plants. अभी 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकता है। देखिए कैसा है, अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड, ठीक है, सबसे ज्यादा दुनिया भर में डेंसिटी के मामले में, ठीक है, राइनो डेंसिटी, वर्ल्ड राइनो डेंसिटी के बारे में अगर बात किया जाए वो कहां पे है, अगर ऐसा करके सवाल आए द आंसर विल बी पोविटोरा। लेकिन पूछा जाए कि नंबर्स में कहां पे ज्यादा है, द आंसर विल बी काजीरंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 66% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड हॉर्न राइनोसरस आर फाउंड इन काजीरंगा। ये दोनों याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस ऑफ द डे दिया है, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है, 2 क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। इसको अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने अभी तक हमारे साथ अगर इंस्टाग्राम में भी आप लोग नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग वहां पे हर दिन करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं। इससे रिलेटेड लास्ट में 2 सवाल भी आप लोगों को मिलेगा, जहां पे आप लोग इसको भी, यहाँ पे भी इंस्टाग्राम में भी आप लोग MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एग्जाम शास्त्र, थैंक यू।